عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بجنور پارلیمانی حلقے میں۔ کافی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آزادی کے 65 برس بیت جانے کے باوجود مسلمان سیاسی، معاشی اور تعلیمی لحاظ سے کیوں پچھڑا ہوا ہے۔ جب الیکشن آتا ہے تو ساری ہی پارٹیاں مسلمانوں کو لبھانے کی کوشش کرتی ہیں، طرح طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی اور جو مسائل ہیں وہ جو کے تیوں بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، ہماری جو ہے مسلمانوں کا پچھڑنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے بالکل بھی، ہم بٹے ہوئے ہیں الگ الگ، اور اگر ایک ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے، اور اگر لیڈر ہے بھی کوئی تو وہ غلام پارٹی ہو گئے، وہ آواز نہیں اٹھاتے ہماری، اس لیے ہمارا پچھڑنے کا کارن ہے۔ اور جو میڈیا ہے وہ میڈیا بھی ہماری بات نہیں اٹھاتے، میڈیا بھی سارا بی جے پی اور نریندر مودی اور یہ اٹھا رکھا ہے، مسلمانوں کی کوئی آواز اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے 2-3 باتیں کہیں کہ لیڈر ہمارے اندر نہیں ہے قوم کے اندر، اور ہم کسی کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ صرف پارٹی کی زبان بولتے ہیں۔ مسلمان آج بہت پیچھے ہے۔ مسلمان کو چاہیے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تعلیم سے لے کے بزنس تک مسلمان پیچھے ہے۔ مسلمان کو چاہیے آگے بڑھے، لیڈرشپ پیدا کرے اپنے اندر بس۔ بالکل، لیڈرشپ پیدا کرے۔ تعلیم کی بات کی، تعلیم کے لحاظ سے کتنا اپلفٹمنٹ ہوا ہے مسلمانوں کا، اور کیا کچھ اس علاقے میں تعلیم کو لے کر ہوا ہے؟ مسلم لوگوں کے جتنے ہمارے یار دوست ہیں، جتنے بھائی ہیں، پڑھنے بڑھنے کی تو بہت سویدھا ہے ہی نہیں بالکل بھی، اور سارے لڑکے پڑھے لکھے ہیں، کسی کو نوکری بالکل ہے ہی نہیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ اور سڑکیں دیکھو گے آپ، ٹوٹی پھوٹی اسکول ہیں، ٹوٹے پھوٹے ایسے پڑے ہیں، کچھ سدھار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو تعلیم لینے کے باوجود ان کو نوکریاں نہیں ملتی، کسی طرح سے ان کو روزگار سے نہیں جوڑا جاتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سن 1947 سے آج تک، آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی جو دردسا ہوئی ہے وہ صرف راجنیتک پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 900 سال تک حکومت مسلمانوں نے کی ہے، اور آزادی کے بعد اور آزادی سے پہلے بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان تھے، آئی ایس افسر تھے، پی سی ایس افسر تھے، اور بڑے بڑے زمیندار تھے، ساری ریاستیں مسلمانوں سے تھی۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ سن 1947 کے بعد سے مسلمان 65 سال میں ایسا ہو گیا کہ صفائی کرمچاری کے روپ میں مسلمانوں کی بھرتی کی جا رہی ہے، آج وہ ناری حساب کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں یہ آر ایس ایس کے ہاتھوں بک گئی ہے، شیو سینا بجرنگ دل کے ہاتھوں بک گئی ہے، یہ سب ایک ہو چکے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اٹھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے، اگر مسلمان جس دن جاگروک ہو گیا اسی دن دلی کی گدی پہ بیٹھا گا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ مسلمان اسپرنگ کی طرح ہے، یہ اسپرنگ کو دبا رہا ہے، خوب دبا رہا ہے، اسپرنگ دبا رہا ہے، اور جس دن اسپرنگ پہ سے ہاتھ اٹھ گیا اس دن ان لوگوں کو سر پہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور دلی کی گدی پر آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کس چیز کو آپ ذمہ دار مانتی ہیں، کس وجہ سے مسلمان پچھڑتے ہیں؟ مسلمان کے پچھڑا پن کے پیچھے مین وجہ ہے اس کی ایجوکیشن میں کمی ہونا۔ تعلیم بہت کم ہے، اور جو تعلیم پا بھی رہے ہیں وہ نام کے لیے ہے۔ ایجوکیشنل جو ہے ان کی اسٹڈی یہ ہے کہ وہ کیول ایک نام کے لیے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، نہ تو ان کو اس سے روزگار مل رہے ہیں، اور نہ ہی اس تعلیم کو اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ ان کی سوچ میں کچھ فرق آئے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ کو بدلو، ان کے لیے روزگار کے اوسر دو، ان کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلے ہے ان کا اکنامک کنڈیشن میں سدھار ہونا۔ بالکل، 2-3 باتیں انہوں نے کہیں کہ مسلمان پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھ پاتے ہیں تو پروفیشنل کورسز نہیں حاصل کر پاتے، جس کی وجہ سے روزگار سے نہیں جڑ پاتے، یا روزگار سے جڑنا بھی چاہتے ہیں تو جڑ نہیں پاتے۔ دیکھیے، ابھی جو میری بہن عابدہ نے یہ بات کہی بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم جو آج بچھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ہمارا خود کا ہاتھ ہے۔ ہم کیوں اس حالت میں پہنچے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، دونوں تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی بھی اور دینوی تعلیم کی بھی۔ ہماری مائیں، جو ہمارے بچوں کی جو مائیں ہیں یا باپ ہے، وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ان کی فیس نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو اسکالرشپ آتی ہے میں دیکھتی ہوں سب سے زیادہ لائن اس میں مسلم بچوں کی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے دوسرے ہماری قوم کا جو شیرازہ منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے، ہمارا کوئی قومی رہنما نہیں ہے۔ جب تک مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید یا حالی جیسے رہنما ہماری قوم کو نہیں ملیں گے، ہماری قوم کی حالت نہیں سدھر سکتی۔ مین چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ بالکل، رہنما نہیں ہے قوم کے، جب تک قوم کو رہنما نہیں ملیں گے حالات نہیں سدھریں گے۔ دیکھیے، 1857 کے بعد
से कोई भी तालीमी इदारा मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा है। या देवबंद की 1868 में बुनियाद डली थी, नानोतवी साहब, अब्दुल रहमान और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों के जेवरात, अपनी जमीनें बेच बेच कर लोगों को तालीम हासिल करवाई है। लेकिन आज आप बिजनौर को ही देख लीजिए कि मुस्लिम स्कूल 2 हैं बिजनौर में। आज तक 30 साल से मैं भी देख रही हूँ कोई ईंट एक भी नहीं रखी गई वहां पर। क्यों नहीं वो अब तक इंटर कॉलेज हो पाया? और उसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, ना कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसमें हम खुद अपने जिम्मेदार हैं, क्योंकि एजुकेशन में हम बिल्कुल हटते जा रहे हैं। दूसरा, मदरसों की जो तालीम है वो टेक्निकल से बिल्कुल अलग है, उसमें बस वो रटवा दी जाती है तकरीरें, और उससे वो दुनिया से बिल्कुल हटे हुए हैं, क्योंकि माशी चीजें उससे जोड़ी नहीं जा रही, ना टेक्निकल चीजें उससे वाबस्ता हैं। तो इस वजह से वो सारी, जब एजुकेशन उनको दुनियावी नहीं मिलेगी तो वो सारा कुछ माशरा हमारा खुद बिखर जाएगा और माशी हालत हमारी। बिल्कुल 2 बात है। कहीं एक तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनियावी तालीम मदरसों में होनी चाहिए, कुछ इस तरह से उनको जोड़ना चाहिए कि रोजगार से जुड़ पाएं। उसके अलावा दूसरी बात कही कि हम लोगों को अपनी खुद फिक्र नहीं है, एजुकेशन के तौर पर हम लोगों को खुद आगे आना होगा, खुद अपने स्कूल कायम करने होंगे, खुद उसके अंदर जो अहले सरवत हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको आगे आना होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कौम की पिछड़ने का जो सबसे बड़ी वजह है वो ये, बल्कि यूं कहिए कि वो एक चीज का शिकार हुई है। 47 की बात तो बाद में है, वहां 1857 पहुंचे या उससे पहले पहुंचे, जब भी आरएसएस ने उसके ऊपर बात करनी शुरू की है और बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की है, तो हम एक जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हम लोगों को किया जाता है। हम लोग हाईली एजुकेटेड हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं है। इंटरव्यू में सीधे सीधे हमें कॉर्नर कर दिया जाता है, और जब मैं हाईली क्वालिफाइड होने के बाद जॉब नहीं पा पाता हूं तो मैं किसी से कहने की स्थिति में भी नहीं रहता हूं कि आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि पहली चीज है इकोनॉमिक, अगर वो अपने घर का रोजगार नहीं चला पा रहा, घर की जो चीजें हैं उनको नहीं मैनेज कर पा रहा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम लोगों को अपने तौर पर एक तो एजुकेशन को बढ़ाना है, दूसरे ये बताना है कि हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हम लोग तो ऐसे हैं जो सबके ऊपर सबको डायरेक्शन दे सकते हैं, सबको लीडरशिप दे सकते हैं। हम अकेले के क़यादत की बात करते हैं, हम तो सारे के सारे क़यादत देने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हम लोग काबिलियत से उससे अपने आप को कमतरी का शिकार हो गए हैं। तो ये हमें जज्बा जगाना होगा और काम करना होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है और हमें लीडरशिप के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, और अगर मौका दिया गया तो हम उसको साबित भी करके दिखाएंगे। जी देखिए, ये बात तो सही है कि हम लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जब भी कभी आता है तो हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि चुनाव में पार्टी हमारे लिए कुछ करे, कैंडिडेट हमारे लिए कुछ करे। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर यहाँ जब भी चुनाव हुआ, हमारे यहाँ मेंबरी का भी चुनाव हुआ, तो मेंबरी के लिए जब लोग मेरे पास आते थे तो मैं उनसे एक बात पूछा करता था, आपका इलेक्शन लड़ना क्या मकसद है? तो ज्यादातर जो कैंडिडेट थे उनका एक ही जवाब होता था कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं मोहल्ले की सेवा करना चाहता हूँ या शहर की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे बात करता था, क्या बिना मेंबर बने आप सेवा नहीं कर सकते मोहल्ले की? लेकिन इलेक्शन टाइम में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और एक टॉपिक तो यह है कि हम लोग खुद अपने उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वरना इतनी ज्यादा हमारे लिए कहीं इतनी रुकावट भी नहीं है, बल्कि हमें खुद ही अपनी, खाली पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हमें खुद भी उसके लिए स्टैब्लिश अपने आप को भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ के अंदर हर चीज। और जिन्होंने स्टैब्लिश किया है, ऐसा नहीं है, आप आईएएस ऑफिसर की लिस्ट उठा के देखो, बहुत सारे मुसलमान आपको मिलेंगे। आप एमबीबीएस की लिस्ट उठा के देखो, बहुत सारे मुसलमान आपको मिलेंगे। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से या इंडिया की तरफ से मुझे लगता है वो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का जो मेन मकसद होता है वो इसलिए होता है कि जो पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, गरीब है, अनएजुकेटेड है, उसको उठाया जाए। लेकिन अगर एक शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा अगर वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो वो तो आईएएस ऑफिसर बन गया, उसकी फैमिली को फिर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? रिजर्वेशन वेरी वेरी मस्ट, बट रिजर्वेशन ओनली बाय द इकोनॉमिकल कंडीशन, नॉट फॉर पर्टिकुलर कास्ट। बस बिल्कुल क्रिमिनल इंडिया की को अलग करने की बात ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए जो पूरी तरह से सोशली बैकवर्ड है और या गरीब है। अगर उसके खानदान में कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उसके बच्चों को वो रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा।
तुम्हारी हरकतें कुत्ते की दुम और कतरीना की हिंदी ऐसी है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और आजकल उसकी हिंदी अच्छी हो गई है। अच्छा खासा रणबीर कपूर मिल रहा था, लेकिन इनकी किस्मत में तो शक्ति कपूर ही लिखा है। आओ! क्या ठोकता है, ठोकता है, ठोकता है। सियासी मौलानाओं का मुसलमानों पर असर है, अगर नहीं है तो फिर सियासी पार्टियां उन्हें मुसलमानों का नुमाइंदा क्यों समझती हैं? अब क्या इस मुल्क के मुसलमानों का फैसला एक 10-11 लोगों की कमेटी वो फैसला करेगी कि मुल्क के मुसलमान किसको अपना वोट कास्ट करें, किसको वोट कास्ट न करें? मुस्लिम उलमा व दानिशवरान की किसी खास पार्टी को वोट देने की अपील कितनी कारगर पर खुली बहस। देखिए सैयद फैसल अली के साथ शनिचर की रात 8 बजे और इतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम मौजूद हैं बिजनौर पार्लिमानी हलके में, हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी लिहाज से क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा है। जी यहाँ बहुत सी बातें हुई हैं और पिछले 18 सालों से मैं टीचर एजुकेशन से जुड़ा हूँ और मेरा ये तजर्बा रहा है कि मुस्लिम बच्चे जो स्कूल एजुकेशन जो लेके आते हैं वहाँ से ही उनका स्टैंडर्ड बहुत लो होता है और इस लो स्टैंडर्ड की वजह से ही जब वो हायर एजुकेशन में पहुँचते हैं तो या तो उनका एडमिशन नहीं होता और या अगर वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन किसी वजह से लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ की भारी भरकम फीस और उसके एक्सपेंसेस ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला होते हैं। तो मेरा ये मानना रहा है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में अगर 2 काम करती, चाहे वो राज्य सरकारें हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत कुछ मसले हल हो सकते थे। एक काम तो ये किया जा सकता था कि मुस्लिम बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे मुस्लिम सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उन स्कूलों की एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाता, क्वालिटी मेंटेन की जाती, तो शायद स्कूल एजुकेशन हमारी मजबूत होती, हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते आसान होते। तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती थी मगर जानबूझ के शायद नहीं किया गया, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में 80% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और 20% SC ST के बच्चे हो सकते हैं। दूसरा एक काम जो किया जा सकता था और नहीं किया गया कि जिस तरह से जीरो बैलेंस पे एडमिशन SC ST के बच्चों को मिलता है हायर एजुकेशन के तमाम कोर्सेज में और उनकी लाखों रुपए की फीस बाद में समाज कल्याण विभाग भरता है, अगर ऐसी कोई सुविधा मुस्लिम बच्चों के लिए भी होती कि चलो भाई तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारी इनकम 2 लाख से कम है तो तुम्हें ये सुविधा दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल 2 बात इन्होंने कही कि एक तो जो लोअर एजुकेशन है उसमें जो है स्टैंडर्ड उसका बढ़ाना चाहिए और दूसरा बात जो कही कि वजीफा बच्चों को मिलना चाहिए हायर एजुकेशन की जो भारी भरकम फीस है उसको अदा करने के लिए। जी हाँ, इसमें तो 2 राय नहीं कि जो स्कीम आती हैं, जो पॉलिसियाँ मुसलमानों के हक के लिए आती हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती और ये उस वक्त तक नहीं पहुँचने की जब तक इस हिंदुस्तान से जहरीली सियासत खत्म ना हो। हम देखते हैं कि हमारे तमाम सरकारी ऑफिसों में भी कहीं ना कहीं फिरका परस्ती है, पक्षपात है, भेदभाव है और जब तक ये चलता रहेगा ये काम मुसलमान कहा जाता है कि पिछड़ा हुआ क्यों है, तो पिछड़ा हुआ था नहीं बल्कि इसे पछाड़ा जा रहा है। मैं इस शेर के साथ, इन पंक्तियों के साथ कि हमारी जात पे दानिस्ता वार होता है, हमारी जात पे दानिस्ता वार होता है, हमारा सर ही फकत सुएदार होता है और फंसाए जाते हैं पहले बड़े सलीके से। ये इलेक्शन का दौर है, अब फिर आप बहुत अच्छे वादे और देखेंगे लोगों के कि फंसाए जाते हैं पहले बड़े सलीके से, फिर उसके बाद हमारा शिकार होता है। बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से सियासी निजाम के ऊपर उंगली उठाई है। देखिए मैंने सभी को सुना और सुनकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक जो मेन पॉइंट है उसे हम भूल रहे हैं। मुसलमानों के पिछड़े होने की वजह जो मेन है वो ये है कि हम लोगों की जिंदगी से दीन निकल गया है।
اگر ہماری زندگی میں دین آ جائے، کیونکہ اللہ وہ تمام جو مولانا ہیں، مفتی ہیں، میں نے تقریر میں اکثر سنا ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اگر ہم نبی کے طریقے پہ ہوں گے اور اللہ کے حکم کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل اور رسوا کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اب یہ سب کچھ تو چھوڑ دیا، اور رہی بات یہ ٹیلنٹ کی، ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن اور ٹیلنٹ، اگر اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم کسی کے ٹیلنٹ کا محتاج نہیں ہیں، کسی خوبی کے، وہ کسی کو کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو بالکل جھولا چھاپ، انگوٹھا چھاپ کسی بھی آدمی کو مکھیہ منتری بنا دے، پردھان منتری بنا دے۔ کل ملا کے لب و لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دین کیسا جائے اس کی فکر کرنی ہے، بس دیٹس آل۔ میں اپنے بھائی سے پوری طرح ایگری ہوں کہ زندگی میں دین کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے، لیکن میں دین کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب اسلام کی شروعات اقرا لفظ سے ہوئی ہے۔ اقرا کے میننگ ہے ایجوکیشن کی، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری ایجوکیشن کا ایم، مقصد، ٹارگیٹ ہونا چاہیے، چونکہ فلاسفرس نے کہا ہے کہ ایجوکیشن وداؤٹ ایم میکس ہیومن لائف بلائنڈ، بلنڈرنگ اینڈ بیٹر۔ تو ہماری ایجوکیشن کا اگر کوئی ایم نہیں ہوگا، ٹارگیٹ نہیں ہوگا، تو ہم بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ دوسری بات جو ہماری ایجوکیشن کے اندر ایک چیز اور ہے کہ ہمارے اندر ایجوکیشن سے سپیریٹی کمپلیکس یا انفیریٹی کمپلیکس کے بیچ کا جو کمپلیکس ہے وہ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ جیسے میرے بھائی نے کہا ابھی کہ ہمارے اندر انفیریٹی کمپلیکس آ گیا ہے۔ انفیریٹی کمپلیکس اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ اس سے آدمی زندگی بھر نہیں ابھر سکتا، اور اس کے ایک شعر بھی اس کے اوپر ہے جو میں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم زیر ہیں لیکن زبر جانتے ہیں، ہم زیر ہیں لیکن زبر جانتے ہیں، نقاشی کا ہنر تم جانتے ہو تو تلوار چلانے کا ہنر ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی نے ریزرویشن کی بات کہی، تو ریزرویشن ناٹ شوڈ بی ایٹ کاسٹ بیسڈ، ہمارا ریزرویشن کاسٹ بیس نہیں ہونا چاہیے، ایٹ پر اکنامک بیس، کہ ہماری اکنامک گروتھ کیا ہے اس کے اوپر ہمارا ریزرویشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہے کہ ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ خالی ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم MBBS بن گئے، BMS بن گئے، انجینئرنگ بن گئے۔ ہمارے کتنے MBBS حضرات ایسے ہیں اور کتنے BMS حضرات ایسے ہیں، کتنے BTech M.Tech ایسے ہیں محلے کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری سبھا کے اندر نہیں آئے، ہماری محفل کے اندر نہیں آئے۔ یہ سب لوگ اس بات کے ضامن ہیں کہ یہ اویئر ہیں۔ میں اس منچ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اویئر ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے جو پچھڑا پن ہے یہ دو ریزن ہے۔ ایک یہ کہ جو اسلام ہے، ہم اس بات کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی گارنٹی سے کہتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو پوری طریقے سے تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ یہ بات آئی گئی انتم اعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم بھی سر بلند رہو گے۔ لیکن یہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم مسلمان بننے کو تیار نہیں ہیں، ایک ریزن تو یہ۔ دوسری ہے کہ ہمارے ساتھ میں کچھ اتہاسک کارن بھی ہیں۔ ہمارے خلاف ایک بری سازش ہے، اور اس آج کے دن نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مالی حالات کیسے وکاس ہو، یہ موضوع ہے۔ دوستوں، شروعات پڑھائی سے ہوتی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے راجیہ سرکار کو، اور راجیہ سرکار کے اختیارات میں آتی ہے پرائمری ایجوکیشن۔ پرائمری ایجوکیشن کے جتنے اسکول ہیں اس میں بھرتی کرنے والوں کی یہ تو ہوڑ لگی رہتی ہے کہ ٹیچرز اس میں بن جائیں، تنخواہ 45 سے 50 ہزار ہو، لیکن کوالٹی ایجوکیشن بالکل نہیں ہے۔ یہ راجیہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، اور راجیہ سرکار کے ہاتھ میں ان اسکولوں کا نظام ہے، چھوٹے اسکولوں کا۔ بھارت سرکار پورا پیسہ دیتی ہے، اس کا استعمال کرنے کا حق صوبائی سرکار کو ہے۔ صوبائی سرکار جب تک کوالٹی ایجوکیشن نہیں سدھارے گی، جب تک، چونکہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر غریب ہونے کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں ہی زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں، جو اچھی فیس والے اسکول ہیں وہ ان کی طاقت سے باہر ہے، اس میں ان کے ایڈمیشن ہی نہیں ہوتے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، جہاں تک دینیات کا سوال ہے وہ تو بھائی عالم ہی کہہ سکتے ہیں دینیات کی بات تو، اور اس میں ذرا سی کوئی غلط بات ہو جائے تو پھر پکڑ لیں گے لوگ۔ لیکن اتنا میں نے مجلسوں میں، محفلوں میں سنا ہے، جب مسلمانوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، عالم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعلیم کے لیے جائیے چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت سعودی عرب سے چائنا کا راستہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت مشکل تھا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعلیم کے لیے چاہے آپ کو چائنا جانا پڑے، چین جانا پڑے، تو دوستو صاف ظاہر ہے
कि डेवलपमेंट, विकास के लिए, दीनी और दुनियावी दोनों के लिए तालीम बहुत मस्ट हुई। बिल्कुल, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है चाहे कितनी भी दूर आपको जाना पड़े और तालीम हासिल करो, उसके अलावा कुरान का भी जो पहला वर्ड है वो इकरा है, तो जाहिर सी बात है जिस मजहब में ये तालीमात दी गई हैं उसके बावजूद मुसलमान उससे दूर क्यों होता नजर आ रहा है। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। धुंधली परछाइयों में, दरख्तों में, दीवारों में मिलेंगे कुछ निशान। बावड़ी है सुनसान, मिलेगा एक नाम जो बदल देगा ज़ैन और आलिया की बेइंतहा मोहब्बत का जहां। बेइंतहा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर पार्लियामानी हल्के में, हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। तरह तरह की राय आ रही है कि आखिर मुसलमान क्यों पिछड़ा हुआ है, क्या वजूहात हैं जो मुसलमान पूरी तरह से पिछड़ता चला जा रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुसलमानों के पिछड़ेपन की काफी बातें आई, तो आखिर इनका हल क्या है, किस तरह से मुसलमानों को आगे आना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। मुसलमान जब आगे आएंगे, जब हम यूनाइट होंगे, मुत्तहिद होंगे हम, और एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। मस्ट एजुकेशन, इक़रा भी इसमें रब का कलाम पर कह रहा है। हम लोग पिछड़े इसलिए हैं कि हम यूनाइट नहीं है। यूनाइट हो जाएगा जितने हम तो सब हमारे पीछे होंगे, जितने हम यूनाइट होंगे सब हमारे पीछे होंगे। हमारी बात मत पूछो, जमाने से निराले हैं। हमारी बात मत पूछिए, जमाने से निराले हैं। बजाय मुस्कुराते हमारे दिल में छाले हैं। ये छाले इन लोगों ने दिए जो गैर मुस्लिम तबाह करना चाहते हैं। हम जब भी फायदेमंद होंगे जब हम यूनाइट होंगे। यूनाइट मस्ट है। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल यूनिटी की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही तमाम मसाइल का हल होगा। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये हमारे यहाँ स्कूल है, इसमें तीसरी क्लास में बच्चा आ गया, उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता। इन टीचर जो हैं, और बताओ गरीब आदमी ट्यूशन कहाँ से पढ़ाए, तो स्कूल में अपना मतलब इतनी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी इनके टीचरों पर क्यों नहीं नकेल कसी जाती है आदमी की। बिल्कुल, इन्होंने स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल उठाया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जिस तरह से सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। बच्चे अपर क्लास में पहुंच जाते हैं लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं आती, अपना नाम लिखना नहीं आता। जी अभी हाल फिलहाल में मेरे भी इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, मगर ये बात सही कह रहे हैं, पीछे भाई ने कहा ये बात सही है कि क्वालिटी नहीं है, बच्चों में क्वालिटी नहीं पैदा हो रही। क्यों कि जो टीचर वहां जाकर के मेहनत करना नहीं चाहते हैं।
ये तो चाहते हैं कि जॉब मिल जाए, मगर वहाँ जाकर के मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बच्चों में क्वालिटी पैदा किस तरह का माहौल आप देखती हैं स्कूलों में? वहाँ पर ये बात देखते हैं, बस नौकरी मिल गई और चेयर पे बैठे रहे और टेबल पे पैर रखे रहे, ये बस हमारी ड्यूटी ये है, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार को, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं कि मुसलमान की हालत यही है कि मसाइल नहीं है, मीम हटा दीजिए, वो साइल बना हुआ है सबके सामने, बस उसके साथ वोट की वक्त तो उसे सब याद करते हैं, उसके बाद कोई फिर के नहीं देखता, सारी साजिशें उसी के लिए घड़ी जाती हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो मौजूदा यहाँ मोहल्ला मिर्दगान के रहने वाले थे, मौलाना मजीद हसन साहब और हाजी इंतजामुद्दीन के लड़के बाबू जहूर रेडो और मुश्ताक नबी खां और वकील हामिद अली खान ने मीटिंग ली कि एक इदारा यहाँ मुस्लिम कौम के लिए डाल दिया जाए। उन्हें बहुत फिक्र थी, जैसे सरसई अहमद खां को थी इसी तरीके उनको थी। चारों तरफ स्कूल फिरता रहा, उसके बाद में मुस्लिम इंटर कॉलेज बनाया। वे लोग सरमायाकार थे और उन लोगों ने अपने अपने बनाए रूम और बना के मिल्लत के हाथ में दे दिए। जिन लोगों के मामलात भी नहीं थे, आज उनकी सियासत मुस्लिम इंटर कॉलेज में चल रही और दरो दीवारें रो रही हैं, कहाँ गया मौलाना मजीद हसन, बाबू जहूर रेडो कहाँ गया। इनका बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन हमें रोका जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यह है कि हम IAS PCS के इम्तिहान में तो पास कर लेते हैं, लेकिन जब मौखिक इम्तिहान में हमें फेल किया जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टम जो है वो सब उन्हीं लोगों के हाथ में है जो हमें रोकना चाहते हैं, हमें हर तरीके से पछाड़ना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा स्कूल DGIC बिजनौर में है, उसमें जो बच्चा 90% और 80% नंबर लेकर के हाई स्कूल में पास हो रहा है साइंस साइड से, उसे 11वीं क्लास में फेल करा जाता है। बताइए, ये हालत है इन लोगों का, क्योंकि वो सब लोग ये RSS के बैठे हुए हैं। बिल्कुल जहनियत जी। मैं एक चीज ये नोट करता हूँ जब से होश संभाला है कि एक तमगा हमारे गले में पड़ा हुआ है कि मुस्लिम्स में एजुकेशन नहीं है, और हम लोगों ने कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ कम कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं कई सालों से अपने यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनके सामने भी कह रहा हूं, मैं कह रहा था कि मेरे यहाँ BTech करने वाले, PhD लेने वाले बहुत सारे मुस्लिम बच्चे होते हैं हर साल। मैं देखता हूं सैनी समाज अपने यहाँ के बच्चों को बुला करके सम्मानित करता है, दलित समाज भी करता है, जाट भी करते हैं, लेकिन मेरा मुसलमान भाई जो है उसे इतना फिक्र नहीं है, वक्त नहीं है कि वो मेरे महल्ले के, मेरे पड़ोस के, मेरे शहर के 150-200 बच्चों को बुला करके एक एक कागज का टुकड़ा ही कम से कम पहुंचा दे। उससे उसका हौसला बढ़ेगा और उन कहने वालों के मुंह पर भी तमाचा लगेगा, उसके ऊपर भी लगाम लगेगा कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें सरकारी मौके नहीं मिल रहे। तो तमाम गैर सरकारी और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप जाके देखिए, वो कौम है जो APJ कलाम जिसने दिया है, तो ये वो कौम है जिसके बच्चे आज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन न उसे हम जान रहे हैं न वो हमें जान रहा है। उनका ये कहना है कि अगर हौसला अफजाई होगी तो एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि कितने बच्चे जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं, कितने पढ़े लिखे। सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स की भी है कि वो बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं किस लिए कि उन्हें वजीफा मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, और इसलिए सिर्फ वो वहां तक की पढ़ाई बच्चे के लिए कंपलसरी मान लेते हैं कि इतनी उनको मिल जाएगी। लेकिन आप उठा के देखिए आंकड़े कि हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितने % मुसलमान हैं जो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। मुसलमानों को पढ़ने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन वहां पर ज्यादातर हिंदू ही आपको मिलेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। मुस्लिम बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता कि उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वहां के एंट्रेंस क्वालिफाई करें और वहां वो एडमिशन लें। बिल्कुल हायर एजुकेशन की ये बात कर रही है कि किस तरह से हायर एजुकेशन में बच्चे नहीं जा पाते, और उसके लिए एक वजह यह आती है कि पैसों की कहीं ना कहीं कमी है। सरकारी जो इदारे हैं उनमें एडमिशन नहीं हो पाता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसा नहीं। ऐसा है कि मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पैसे से कमजोर नहीं है। हम क्यों डिपेंड रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर? क्योंकि अपने इतने पैसा है और आप प्राइवेट सेक्टर में आप एजुकेशन लेकर अपने खुद बिजनेस या कुछ डेवलपमेंट करें उसका, और वहीं पे बच्चों को अपना सेटल करें। हम क्यों मोहताज बने हुए हैं उनके? ऐसी कोई जरूरत नहीं है उनके मोहताज बनने की, क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं पूरा उनका। और हमारे पास इतना पैसा है, इतने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जमींदारी इतनी है, उसको बेच के और सब डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे शहरों में। अब बिजनौर को देख लीजिए, हर आदमी पढ़ के बाहर निकलना चाहता है, इसलिए पूरा खाली नजर आता है, क्योंकि यहाँ वसाइल नहीं है, ना ही यहाँ रोजगार है, ना कोई बिजनेस है।
بالکل چھوٹے شہروں کی اگر بات کریں تو ان میں تھوڑا وسائل کی کمی ہے. لوگ اگر پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں اور بڑے شہروں میں جو ہے اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں اور وہیں پر رس بس جاتے ہیں. عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آج بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.